جو بنگلہ دیش سے ہمیں سبق سیکھنے چاہیے تھے ایسٹ پاکستان کے جانے سے، وہ تو سبق نہیں سیکھے۔ بنگلہ دیش جو کبھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، آج وہ ایک الگ اسٹیٹ ہے۔ آج বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়۔ 1971 میں خون ریزی جنگ کے نتیجے میں پاکستان سے جدا ہو گیا۔ لیکن اس کی سپریشن کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ اس بنگلہ دیش کی تقسیم کے لیے کیا ذوالفقار علی بھٹو ذمہ دار تھے یا شیخ مجیب الرحمان تھے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں یہ غلطی نہیں کروں گا کہ میں فیصلہ کروں۔ میں کون سی چیز ہوں، میں کون سی چیز ہوں کہ آپ کا فیصلہ میں کروں؟ اے خدایا، میں کیسے عوام کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں؟ کیوں مجیب الرحمان پر غداری کا لیبل لگایا گیا؟ پاکستان آرمی کا کیا رول ہے؟ ایکچوئل میں بنگلہ دیش کی پاکستان سے سپریشن ہوئی کیسے؟ ان ساری چیزوں کو آج ڈسکس کریں گے۔ پاکستان ٹوٹ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ You make any attempt at a conditional surrender? No, sir. The question is either we live or we die. دیکھیں 1947 میں جب برٹش راج ہندوستان سے ختم ہوا تو مسلم اور ہندوز کو لے کر دو الگ الگ ریاستیں بنائی گئیں، پاکستان اور انڈیا۔ جس جگہ پر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی وہ ایریا مسلمانوں کو دے دیا گیا اور اسے ڈومینین آف پاکستان ڈکلیئر کیا گیا، جبکہ دوسری طرف جہاں غیر مسلم اکثریت زیادہ تھی وہ ایریا ہندوؤں کو ملا اور اسے ڈومینین آف انڈیا ڈکلیئر کیا گیا۔ یہ دو اسٹیٹ تو ڈکلیئر ہو گئی تھی، انڈیا اور پاکستان، مگر ہندوستان میں برٹش کے انڈر بنگال بھی تھے۔ ان کا اپنا ایک صوبہ تھا جہاں رہتے تو مسلم اور ہندوز ہی تھے، مگر ان کی اپنی زبان اور ان کا اپنا ایک کلچر تھا جس کے مطابق وہ رہتے تھے، اور ان کے پاس بہت بڑا ایریا تھا اور ان کی آبادی اس وقت تقریباً 60 ملین تھی، اور بنگال کا یہ جو ایریا تھا وہ ہندوستان کے تو قریب تھا مگر پاکستان سے کافی دور تھا۔ تو جب انڈیا اور پاکستان کو آزادی ملی تو برٹش راج نے بنگال کو ایک الگ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی بجائے اسے پاکستان اور ہندوستان دونوں کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیا، کیونکہ برٹش راج نے سوچا کہ اگر بنگال کو ایک الگ اسٹیٹ بنا دیا تو اس سے سکھ یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ایک الگ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کریں گے، اس سے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اور فساد پیدا ہوگا، لوگ دنگے کریں گے۔ تو اس چیز کو لے کر برٹش نے بنگال کے دو ٹکڑے کر دیے اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں ایسٹ بنگال جہاں مسلم اکثریت زیادہ تھی سے پاکستان کو دے دیا، جبکہ دوسری طرف ویسٹ بنگال جہاں ہندو اکثریت زیادہ تھی سے ہندوستان کے ساتھ جوڑ دیا، جس میں آج انڈیا کا بڑا شہر کولکتہ بھی موجود ہے۔ ویسٹ بنگال کا جو ایریا تھا وہ پاکستان سے تو کافی دور تھا، مگر پھر بھی اسے پاکستان کے ساتھ جوڑنے کے پیچھے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں مسلم اکثریت زیادہ تھی، اور یہ مسلم نہ تو انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے تھے اور نہ یہ اپنی زمینوں کو چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی نسل، زبان اور جو کلچر تھا وہ باقی مسلم اور ہندوؤں سے مختلف تھا اور وہ اپنی جگہ پر ہی رہنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے ایسٹ بنگال کا ایریا پاکستان کے انڈر ڈکلیئر کیا گیا اور اس میں پاکستان نے اپنی گورنمنٹ بنائی۔ اس تقسیم کے دوران جب 1947 میں بنگال کی تقسیم ہوئی تو ویسٹ بنگال میں جو مسلم تھے وہ ایسٹ میں مائگریٹ کر گئے اور دوسری طرف ایسٹ میں جو ہندو تھے وہ ویسٹ میں چلے گئے۔ ایسٹ بنگال چونکہ پاکستان سے تقریباً 1000 میل دور تھا، اس وجہ سے پاکستان کمیونیکیشن کے لیے ہوائی راستہ یا سمندری راستہ ہی استعمال کرتا۔ تو اس آزادی کے بعد اب پاکستان کے دو حصے تھے، پاکستان اور ایسٹ بنگال۔ تو ایئر 1955 میں پرائم منسٹر محمد علی بوگرا جو ہیں وہ 1 یونٹ اسکیم نافذ کرتے ہیں، جس میں ایسٹ پاکستان میں جو 4 صوبے تھے یعنی پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان، ان کو 1 یونٹ میں اکٹھا کر دیا اور اس سے ویسٹ پاکستان کا نام دے دیا، جبکہ دوسری طرف ایسٹ بنگال کا نام چینج کر کے ایسٹ پاکستان رکھ دیا۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اس وقت ایک پاکستان نہیں تھا بلکہ پاکستان کے دو ٹکڑے تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ اس کے بعد 1956 میں پاکستان کا نام جو ہے وہ چینج کر کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنا دیا گیا۔ ایچ ایس سہروردی جو ایک بنگالی پولیٹیشین تھے وہ 1956 سے لے کر 1957 تک پاکستان کے پرائم منسٹر رہے۔ اس کے بعد بنگالی بیوروکریٹ سکندر مرزا پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ بنے تھے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بنگالیوں کو پاکستان میں ہر قسم کا پروٹیکشن، ہر قسم کی فیسلٹیز برابر دی جاتی تھی، انہیں پاکستان میں برابر کا حصہ دار سمجھا جاتا تھا۔ صدر ایوب خان ایسٹ پاکستان میں انڈسٹریز لے کر آئے، کپتائی ڈیم 1965 میں بنایا گیا تھا اور ایئر 1962 میں ڈھاکہ کو پاکستان کا دوسرا کیپٹل بنا دیا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بنگلہ دیش کی آزادی کے چرچے 1966 میں ہی ہونے لگ گئے تھے، جب ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے 6 پوائنٹ موومنٹ پیش کی۔ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کو خود مختار کر دیا جائے، اسے آزاد کر دیا جائے۔ اس تحریک میں سیدھا تو آزادی کا مطالبہ نہیں کیا
किया गया, मगर इसमें कुछ ऐसी शराइत रखी गई थी जिनकी वजह से लगता था कि मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग चाहते हैं, यानी ईस्ट पाकिस्तान की अलग करेंसी हो, उसकी अलग आर्मी हो और बैरिया का जो हेडक्वार्टर है वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगाल में होना चाहिए। मगर इस तहरीक को वेस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन थे या ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग के जो अपोजिट पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इस तहरीक को मुस्तरद कर दिया। अवामी लीग के अलावा जितनी भी पार्टीज थी उन्होंने इस चीज को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। 1965 में मुजीबुर रहमान पर साजिश करने का केस भी चलाया जाता है, जिसमें इंकशाफ किया जाता है कि मुजीबुर रहमान भारत के साथ मिलकर ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, मगर इस केस में मुजीबुर रहमान के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद ये आता है 1968 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, जिन्होंने बगावत करके 1958 में सिकंदर मिर्जा को हटाकर सदारत हासिल की थी, वो 1958 से लेकर अभी तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज थी, जिसमें अवामी लीग भी पार्टी शामिल थी, वो ये तहरीक चलाती हैं कि अयूब खान सदारत से इस्तीफा दें और किसी नई गवर्नमेंट को आने दें। तकरीबन 10 साल तक वो बगावत के जरिए हासिल की हुई सदारत पर अभी तक मौजूद है। तो अयूब खान जो है वो अपोजिशन के साथ बात करने की भी कोशिश करते हैं, मगर कोई खास नतीजा नहीं निकलता। इस चीज को लेकर अयूब खान जो है वो 25 मार्च 1969 में प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दे देते हैं और प्रेसिडेंट की जो जगह है वो कमांडर इन चीफ याह्या खान के हवाले कर देते हैं। जब याह्या खान को सदारत मिलती है तो वो इससे अगले ही दिन 26 मार्च 1969 को टीवी पर सामने आते हैं और पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान करते हैं और पार्लियामेंट को तहलील करने के बाद पाकिस्तान में आर्मी गवर्नमेंट डिप्लॉय करते हैं। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का गवर्नमेंट को लेकर इशू चल रहा था। मुजीबुर रहमान 6 पॉइंट मूवमेंट चला रहे थे, पॉलिटिक्स पूरी तरह बिखरी हुई थी। तो ये जितने तनाज़े या मसाइल थे वो सब अयूब खान के जाने के बाद याह्या खान के खाते में आ गए थे। अयूब खान तो इस चीज से फ्री हो गए थे, मगर याह्या खान इन मसाइल में फंस गए थे। मिलिट्री गवर्नमेंट होने की वजह से जो पॉलिटिक्स पार्टीज थे वो पाकिस्तान में इलेक्शन चाहती थी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाई जाए, अवाम जो है वो अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करें। तो 1970 में याह्या खान क्या करते हैं कि एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी करते हैं, जिसका मतलब ये था कि 1 यूनिट स्कीम को खत्म कर दिया गया। जैसा कि पहले बताया था कि 1 यूनिट स्कीम के तहत मोहम्मद अली बोगरा 4 सूबों को मिलाकर इसे वेस्ट पाकिस्तान बना देते हैं, जबकि बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान बना देते हैं। तो याह्या खान इस चीज को खत्म कर देते हैं और एक पाकिस्तान बनाकर पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान करते हैं। और देखा जाए तो इन सारे मसाइल का हल भी इलेक्शन ही थे। इन इलेक्शन का मेन मकसद ये था कि जिस पार्टी की हुकूमत बनेगी वो पार्टी ईस्ट और वेस्ट दोनों जगहों पर अपनी हुकूमत बनाएगी, क्योंकि इससे पहले मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगाल के लिए अलग गवर्नमेंट चाहते थे, अलग आर्मी चाहते थे। तो इस इलेक्शन के फैसले से इन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाना था। ये इलेक्शन पाकिस्तान की आजादी के बाद पहले जनरल इलेक्शन थे और इन इलेक्शन को पाकिस्तान की तारीख में पहले इलेक्शन होने की वजह से साफ और शफाफ इलेक्शन समझा गया। इन इंतखाबात में कई पार्टीज ने हिस्सा लिया था, जिसमें 2 सबसे बड़ी पार्टी शामिल थी। एक पाकिस्तान पीपल पार्टी, जिसके लीडर जुल्फकार अली भुट्टो थे और वो वेस्ट पाकिस्तान में मौजूद थे और वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अवामी लीग पार्टी थी, जिसके लीडर शेख मुजीबुर रहमान थे और वो बंगाल यानी ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद थे और वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। इस चीज ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। इसकी आगे चलकर आपको अच्छे से समझ आएगी। बंगाल में अवामी लीग और वेस्ट पाकिस्तान में पीपल पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान अवाम को जलसों और तकरीरों के जरिए बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचा। मुजीबुर रहमान जो थे वो बंगाल में 6 पॉइंट तहरीक की बुनियाद पर स्पीच देते थे और बांग्लादेश की आजादी की बात करते थे। इस वजह से जो बंगाली थे वो मुजीबुर रहमान की बहुत ज्यादा हिमायत करते थे, जबकि भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान में इकोनॉमी को लेकर पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करते थे। यानी हर एक का अपना अपना नजरिया था। इस इलेक्शन में जो कौमी असेंबली के लिए सीटों की सिलेक्शन की गई वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर की गई कि जिस साइड की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो चौंका ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगाल की आबादी वेस्ट के चारों सूबों की मुश्तरका आबादी से भी ज्यादा थी। इस वजह से नेशनल असेंबली में टोटल 300 सीटें थी, जिसमें 162 सीटें ईस्ट पाकिस्तान को अलॉट की गई, जबकि 138 सीटें वेस्ट पाकिस्तान को अलॉट की गई। और इलेक्शन की डेट नेशनल असेंबली के लिए 7 दिसंबर 1970 रखी गई, जबकि सूबाई लेवल पर इलेक्शन 17 दिसंबर को होने थे। यानी नेशनल और सूबाई इलेक्शन का फर्क आपस में 10 दिन का था। तो जब 7 दिसंबर को इलेक्शन हुए तो भुट्टो को इलेक्शन रिजल्ट से पहले इस बात की कंफर्मेशन थी कि उनकी पार्टी ही जीतेगी, मगर मुजीबुर रहमान भी इसी ताक में थे कि उनकी पार्टी ही जीतेगी, मगर जो भी होना था वो इलेक्शन रिजल्ट पर ही होना था। तो 7 दिसंबर को जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो इस चीज ने सबको हैरान कर दिया। मुजीबुर रहमान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में टोटल 162 सीटों में से 160 सीटें हासिल करते हैं और वेस्ट में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाते। इस तरह मुजीबुर रहमान ने तो ईस्ट में क्लीन स्वीप कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ वेस्ट में भुट्टो जो है वो 138
78 सीटों में से सिर्फ 81 सीटें ही जीतने में कामयाब होते हैं और ईस्ट में एक भी सीट नहीं जीत सके। इन इलेक्शन रिजल्ट की बेस पर मुजीब जो थे वो 160 सीटें लेकर फर्स्ट पोजीशन पर थे, जबकि भुट्टो 81 सीटों के साथ सेकंड पोजीशन पर थे। यानी अब ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ मुजीबुर रहमान की हुकूमत बननी थी, मुजीबुर रहमान ने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होना था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर थे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में बनने वाली गवर्नमेंट को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। उस वक्त भुट्टो ने मुजीबुर रहमान के लिए एक जुमला बोला था कि इधर हम उधर तुम, यानी हम यहाँ हुकूमत करते हैं तुम वहाँ हुकूमत करो। इस तरह पहली बार लगा कि पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान डिवाइड होकर रहेगा। लेकिन उस वक्त कुछ बंगाली भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ खड़े थे कि हुकूमत वेस्ट में ही होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ वेस्ट में मशहूर शख्सियत जैसा कि फैज अहमद फैज और कई लोग अवामी लीग की हुकूमत चाहते थे। यानी गवर्नमेंट को लेकर ईस्ट और वेस्ट में तनाज़ात शुरू हो गए थे। तो इन तनाज़ात को खत्म करने के लिए याह्या खान जो है वो 28 दिसंबर 1970 को कराची में भुट्टो से मुलाकात करते हैं और उन्हें इस बात पर कन्विंस करते हैं कि वो मुजीबुर रहमान को ढाका में हुकूमत बनाने दें। तो याह्या खान के कहने पर भुट्टो मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट को तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन सारी परेशानियां यहाँ भी खत्म नहीं होती। भुट्टो के क्लेम करने के बाद अगले दिन याह्या खान ऐलान करते हैं कि असेंबली का पहला इजलास जो है वो ढाका में होगा और दूसरी तरफ मुजीबुर रहमान भी चाहता था कि गवर्नमेंट के तमाम अख्तियारात ढाका के पास हों। इसके बाद मुजीबुर रहमान जो है 3 जनवरी 1970 को एक जलसे से खिताब करते हैं और इसमें ये कसम खाते हैं कि वो बांग्लादेश को तस्लीम करवाएंगे। तो इस चीज को लेकर 12 जनवरी को याह्या खान मुजीबुर रहमान से मुलाकात करने के लिए ढाका चले गए और वहाँ मुजीबुर रहमान से कुछ हुकूमत को लेकर बातचीत करते हैं। इसके बाद जब वो कराची वापस आए तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मुजीब ही होंगे और असेंबली का पहला इजलास भी ढाका में ही होगा। और फिर याह्या खान भुट्टो से लाड़काना में मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि वो ढाका जाकर मुजीब से बातचीत करें और मुज़ाकरात करें और असेंबली का पहला इजलास अटेंड करें। मगर भुट्टो जो है वो मुजीबुर रहमान की तहरीक के 6 नुकात को तस्लीम नहीं करते। उनकी गवर्नमेंट को तो तस्लीम करते हैं मगर उनकी तहरीक को तस्लीम नहीं करते और असेंबली के पहले होने वाले इजलास की मुखालफत करते हैं। लेकिन सूरत हाल उस वक्त मजीद खराब हो जाती है जब 3 मार्च 1970 को ढाका के अंदर होने वाला पहले असेंबली का इजलास भुट्टो के दबाव में आकर याह्या खान 28 फरवरी 1971 को मुलतवी कर देते हैं। इससे बंगाल में बदअमनी फैल जाती है। मुजीबुर रहमान लोगों को हड़ताल की कॉल दे देते हैं। इस बदअमनी में बंगाली और बिहारियों के दरमियान दंगे शुरू हो जाते हैं और इन दंगों में 300 बिहारी कत्ल हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि बिहारी क्यों इन दंगों में शामिल हुए, तो ये बिहारी वो उर्दू जबान वाले पाकिस्तानी थे जो 1947 में आजादी के बाद बिहार में हिजरत कर गए थे और ये उर्दू जबान की वजह से वेस्ट पाकिस्तान की हिमायत में थे। इसी बदअमनी के दौरान मुजीबुर रहमान जो है वो 7 मार्च 1971 को मशरकी पाकिस्तान में खिताब करते हैं और कहते हैं कि सारी सिचुएशन के बाद अवामी लीग का सिर्फ और सिर्फ मकसद बांग्लादेश की आजादी होगी। आज के बाद जो भी बात होगी वो बांग्लादेश की आजादी की बात होगी। 23 मार्च 1971 को पूरे ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशी परचम लहराए गए। बंगाली अपनी आजादी को लेकर पूरी तरह बगावत पर उतर आए थे। तो ये बांग्लादेश की आजादी, दंगे, कत्लो गारत, ये जितने भी इश्यूज थे इन सारी चीजों को लेकर याह्या खान मार्च अल्लाह का ऐलान कर देते हैं और मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी कर दिए। और बदअमनी को रोकने के लिए याह्या खान जो है वो GHQ में इजलास बुलाते हैं और इस इजलास में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करने का हुक्म देते हैं, जिस पर ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर सैयद अहमद हसन ने इस ऑपरेशन पर एतराज उठाया क्योंकि उसे शक था कि इस ऑपरेशन से और ज्यादा कत्लेआम होगा। तो पाकिस्तानी फौज और एयर फोर्स की मीटिंग के दौरान दबाव में आकर याह्या खान ने अपने कमांडोज को ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दिया। सैयद अहमद हसन जो है उनको बाद में गवर्नर के ओहदे से फारिग कर दिया गया और उनकी जगह शहाबजादा याकूब खान को गवर्नर के ओहदे पर लाया जाता है, मगर वो भी इस ऑपरेशन को लेकर मुस्तफी हो जाते हैं। जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर बन गए। फिर याह्या खान जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान को ऑर्डर देते हैं कि वो बंगाल में क्रैकडाउन शुरू करें, अपनी आर्मी ढाका में डिप्लॉय करें। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान आर्मी 25 मार्च 1971 को रात को ढाका में क्रैकडाउन शुरू करती है और मुजीबुर रहमान को 25 और 26 मार्च की जो रात होती है उस रात उसे अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान में लाया जाता है। तो 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान आर्मी के मेजर जियाउर रहमान जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के कहने पर बांग्लादेश की आजादी का ऐलान कर देते हैं। अगर आप बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस देखें तो वो 26 मार्च 1971 है। बाद में 4 अप्रैल 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट के कमांडर टिका खान को हटाकर अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को कमांडर बना दिया जाता है, जिस पर बाद में वो इस ऑपरेशन को लीड करते हैं। उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया वेस्ट पाकिस्तान में कोई रद्द अमल नहीं देते, कोई न्यूज नहीं दिखाते कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसलिए सिर्फ गैर मुल्की न्यूज का रेडियो ही सुना और माना जाता था। उस वक्त बंगाली कई टुकड़ों में बांट गए थे, एक वो जो आजाद बांग्लादेश चाहते थे और दूसरे वो जो
मुत्तहिद पाकिस्तान की हिमायत करते थे और सेपरेशन नहीं चाहते थे, तो ये दोनों ग्रुप आपस में दंगे करने लग जाते हैं। इस सर्च लाइट ऑपरेशन और दंगों के दौरान कई बंगालियों को कत्ल किया गया, कई औरतों के साथ गलतकारी की गई। एक अंदाजे के मुताबिक इस आजादी की जंग में करीबन 30 लाख बंगाली कत्ल हुए और 2,20,000 औरतों के साथ गलतकारी की गई। इतनी ज्यादा कत्ल गारत और इतनी ज्यादा औरतों के साथ बुराई करना, ये सब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आजादी के वक्त भी नहीं हुई थी। ये अपने आप में आजादी की एक सबसे बड़ी जंग थी। हजारों लोगों की मौत के बाद भी याह्या खान को अप्रैल 1971 में लगा कि ऑपरेशन सर्च लाइट कामयाब हो जाएगा। जब इतने दंगे हो रहे थे, बंगाली कत्ल हो रहे थे, तो उस वक्त 10 मिलियन बंगाली हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। वेस्ट बंगाल में इतने बंगालियों की माइग्रेशन को देखकर हिंदुस्तान के लिए उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तो इस चीज को लेकर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लगा कि बंगालियों को इंडिया में घुसने के लिए रोकने से बेहतर है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू की जाए, बांग्लादेश पर कब्जा किया जाए। तो इस वजह को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भारतीय आर्मी चीफ जनरल सीएम मानिक शाह को हुक्म दिया कि वो ईस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए आर्मी रेडी करें। तो इस चीज को लेकर इंडियन इंटेलिजेंस रॉ ने इंडियन असाइलम कैंपों का इस्तेमाल करके मिलिट्री को ट्रेनिंग दी और नवंबर 1971 तक हिंदुस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में घुसना शुरू कर दिया और इससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। उस वक्त सोवियत यूनियन ने भी हिंदुस्तान आर्मी का साथ दिया और उनकी हर तरीके से मदद की। नवंबर के मिड तक हिंदुस्तान आर्मी बॉर्डर पर बड़ी तादाद में जमा हो चुकी थी। तो इस चीज को लेकर याह्या खान जो है वो इमरजेंसी का ऐलान करते हुए अवाम से जंग के लिए तैयार रहने का कहते हैं। पाकिस्तान के 12 करोड़ मुजाहिदों, दुश्मन ने एक बार फिर हमारी गैरत को ललकारा है। अपनी बका और नामूस के लिए एक जान होकर उठो। इंडियन मिलिट्री ईस्ट पाकिस्तान में हमला कर दी है। तो इस चीज को लेकर 3 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान आर्मी ने हिंदुस्तान के 8 एयर बेसेस पर हमला कर दिया। इससे पाकिस्तान और इंडिया के बीच वार डिक्लेयर कर दी गई। बंगाल में हिंदुस्तान का एक ही मकसद था कि ढाका पर कब्जा करना और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान मिलिट्री को कंट्रोल करना। तो 14 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तान मिलिट्री जो है वो ढाका पर कब्जा कर लेती है। इससे बंगाल तकरीबन पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। मगर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी अपने हथियार डाल देती है और जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी और इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के दरमियान जंग बंदी पर दस्तखत हुए और जंग रोक दी गई और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर एक नई आजाद रियासत बांग्लादेश बन गया और इसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। इस वार में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इसमें पाकिस्तान मिलिट्री के 90,000 सोल्जर को हिंदुस्तान अरेस्ट कर लेता है। बाद में 20 दिसंबर की रात को भुट्टो नए सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से हलफ उठाते हैं। सेपरेशन के बाद 8 जनवरी 1972 को मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया। इसके बाद भुट्टो जो हैं वो जुलाई 1972 को शिमला जाते हैं और भारत के साथ अमन पर बातचीत करके पाकिस्तान मिलिट्री के कैदियों को वापस लाते हैं।